Yes, welcome back. Good afternoon, children. Now, today we begin this session with the doubts. Dear children, due to the class 10th result and analysis, I will visit Vidyalaya tomorrow. So, I will take the class on YouTube. Please read the doubts. Thank you. You have posted the doubts very quickly. First doubt asked by 9th question by Tanik Sivare. Question number 9th. Please read it, Anjali. Two water taps together can fill a tank in 9 holes 3/8 hours. Two water taps fill a water tank. दोनों को एक साथ ऑपरेट कर दिया. वाटर टैंक को ये फिल करते हैं इन हाउ मेनी आवर्स? 9 होल 3/8 hours. 9 होल 3/8 hours. It may be written as 75/8 hours. Both together fill this tank in 75/8 hour. Yes. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the See, one of the tap having the larger diameter and another having the smaller diameter. Let the water tap of larger diameter takes X hours to fill the tank. If we operate only the water tap of larger diameter, then it can be filled the whole tank in X hours. And according to your question, then water tap of smaller diameter, it will take how many hours more? larger diameter takes 10 hours less. Yes. And smaller diameter takes 10 hours more. So X plus 10 hours. If larger diameter takes X hour, then definitely the smaller diameter will take X plus 10 hour. Since जो larger diameter उसको कम टाइम लगेगा, तो X plus 10 minus 10 that is वो X hour में fill कर देगा. यदि इसको X सपोज करोगे तो इसको X minus 10 लोगे. Got it? दोनों का डिफरेंस 10 होना चाहिए. मैंने प्लस ले लिया. अब देखिए इन 1 hour यदि दोनों को both tap together fill the tank in 1 hour. यदि दोनों को ऑपरेट कर दिया और 1 आवर में मैंने पूछा क्यों, कितना हो जाएगा? जैसे एक वो क्वेश्चन आपने एम्ब्रॉयडरी वाला क्वेश्चन किया था जिसमें आप कहते थे इफ 10 पीपल आर एबल टू डू द कंप्लीट वर्क इन 1 day और 10 days, जैसे 10 लोग मिलके 10 पीपल आर एबल टू कंप्लीट अ जॉब इन 5 days, then what is the work done by all 10 people in 1 day? You say 1/5 part. वैसे ही ये दोनों टैप जब ऑपरेट होते हैं तो 75/8 आवर्स में फिल कर देते हैं. तो 1 आवर में दोनों मिलके कितना फिल करेंगे? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी 8/75 पार्ट ऑफ द टैंक. एंड larger diameter tap fill in 1 hour. यदि केवल इसका देखें हम larger diameter वाले का, तो वो 1 hour में कितना फिल करेगा अंजलि? 1/x part of the tank. And
smaller diameter. Smaller diameter tape fill in 1 hour 1 upon x plus 10 part of the tank. अब दोनों को हमने साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर दिया. So both together fill in 1 hour 1 upon x plus 1 upon x plus 10, and according to it is given that it will be 8 by 75 part of the tank. इसका LCM ले लीजिए, इक्वेशन फॉर्मेशन करिए, थोड़ा जल्दी करिए जी. टेक LCM एंड फॉर्म द इक्वेशन. इसका इक्वेशन बनाइए. प्लीज फ्रेम द इक्वेशन. LCM लेके इक्वेशन बनाइए. Once again I want to tell you both the water tape fill the tank in 75 by 8 hours. Then in 1 hour they can fill 8 upon 75 part of the tank. According to your question, it is given that the smaller diameter take 10 hour more than the larger diameter. In other words, the larger diameter take 10 hour less than the smaller diameter. तो स्मॉलर डायमीटर को मैंने x प्लस 10 लिया तो लार्जर हो गया x. यदि स्मॉलर को x लेता तो x माइनस 10 हो जाता लार्जर. देन इन 1 आवर बोथ 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 10 इक्वल टू 8 अपॉन 75. प्लीज टेक द LCM. इसका जब LCM लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 10 आएगा डिनोमिनेटर में. देन व्हाट हैपन, इट इज x प्लस 10 प्लस x इक्वल टू 8 अपॉन 75. ये दिख रहा आदित्य? Then x plus x, that is 2x plus 10 upon x square plus 10x. It is 8 upon 75. 8x square plus 80x equal to plus, then it is 8x square plus 80x minus 150x minus 750 equal to 0. Then it is 8x square minus 70x minus 750 equal to 0. Divided by 2, 4x square minus 35x minus 375 equal to 0. Then using any one method in examination, no need to say sir I will apply only formula method. Formula method is the ब्रह्मास्त्र, वो तो लास्ट में अप्लाई करना ही है. यदि आपको फैक्टराइजेशन आता है आप फैक्टराइजेशन यूज कर लें, बट दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ formula method. So that's why I am exploring, or I have explained with the method called formula method. If you want to solve with the help of factorization method, you make the middle term splitting, then you get the answer. Got it? So here you apply the formula. A equal to 4, V equal to minus 35, C equal to minus 375. क्या किया? स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लिया. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर किया a b c का वैल्यू. देन फर्स्ट यू कैलकुलेट d फॉर डिस्क्रिमिनेंट. इट इज b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 35 स्क्वायर माइनस 4, a means 4, c means minus 375. प्लीज कैलकुलेट इट. इसको कैलकुलेट करो. माइनस 35 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस 35 का 35 में इंटू कर लीजिए. 35 इंटू 35 कर लीजिए. जल्दी करिए. 1025 आ रहा है क्या?
ओ वेरी नाइस, 1225 माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस 16 इंटू 375 करिए, प्रोडक्ट कर लीजिए, जरा तेजी से प्रोडक्ट किया करिए। ये इसका ट्वाइस करने पर 700, 700 का ट्वाइस किया आपने तो 1400, 1400, 5600 आ रहा है क्या? 375, अच्छा 750 आएगा, यस ठीक है, 6000, देन इट इज 7225, discriminant will be 7225. Then you say, sir, we know that the formula x equal to minus b plus minus root d upon 2a, होल अपॉन का साइन लगाना। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो गया है। कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखिए, आपको चैट में आके अटेंडेंस देने की जरूरत नहीं है। प्लीज यूज दी कमेंट बॉक्स, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप लिखते हो तो वो प्रिजर्व होता है। बाद में मैं आपका कमेंट्स पढ़ लेता हूं, समझ आया नहीं आया, व्हाट विजिबिलिटी है आपको, मैं सुनाई दे रहा हूं नहीं दे रहा हूं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम समझने में दिक्कत आ रही है, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस in comments box only. minus 35 plus minus root over 7225 upon 2a, what is a? 4. कुछ नहीं किया, इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, माइनस माइनस प्लस 35 प्लस माइनस, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 7225? आपको मेथड याद होगी, मैं रिकॉल करा दूं, वो बीते दिन क्लास 8 के 8 8 जा 64, 8 2 5 आएगा, 8 8 16, 5 5 5 जा 25, 32 8, दैट इज 85 होगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 7225 इज अपॉन 8, टेकिंग प्लस साइन, taking plus, then it is x equal to 35 plus 85 by 8. Then find the sum. 35 plus 85 by 8. Find their sum. 35 plus 85 plus 5, that is 90 plus 30, that is 120 upon 8. That is 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 5 जा means 15 hours. So x will be 15 hours. अब नेगेटिव साइन जब लोगे, x equal to 35 minus 85 by 8, that is minus, yes, 50 by 8. Time is never negative. X is the time, so it is never negative. So it is neglected, not possible. It is not possible. Neglected. So neglected. लिखने का है, neglect कर दिया, इसको नहीं लेने का. Therefore, लास्ट में आंसर लिखना बेटे. Thus, the tap of larger diameter takes how many hours? 15 hours. 15 hours. X equal to 15 hours. Whereas tap of smaller diameter takes x plus 10. That is 15 plus 10. So 25 hours alone to fill that tank. You understand? This is the way by which you solve the question number 9th. तनिष्क परोहा, समझ आया क्या? आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं. माय डियर चिल्ड्रन, इफ दे आस्क दिस क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, you remember, if there is not mentioned in the question,
solve by using formula method, then no need to applying the formula method. Whatever you have the problem, if you are familiar with factorization method, you feel easy in factorization method, then you applying factorization method. Otherwise you applying the formula method as you want. But यदि क्वेश्चन में मेंशन है, जनरली मेंशन नहीं होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में होता है, बाकी कहीं नहीं होता है. आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं. सो प्लीज रीड द नेक्स्ट डाउट. आस्क बाय पलक तिवारी. सबसे क्विक रिप्लाई किया था पलक ने. क्वेश्चन नंबर 10th, अदिति, पलक एंड देयर आर सम मोर स्टूडेंट्स. हाँ. An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore. 132 किलोमीटर डिस्टेंस है. एक्सप्रेस ट्रेन, लेट एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेवल्स विथ. हाँ हाँ बोलो. An express train takes 1 hour less than the passenger train to travel 132 km. If the average speed of express train is 11 km per hour, more than that of the passenger train. लेट द पैसेंजर ट्रेन पहले ले लीजिए क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन की बाद में दी है. लेट द पैसेंजर ट्रेन ट्रेवल विथ, let the passenger train travel with x kilometer per hour. Passenger train's speed be x kilometer per hour. Then that of एक्सप्रेस ट्रेन क्या होगी सर? एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड क्या होगा? x + 11. दीदी स्पीड तो ज्यादा होगी एक्सप्रेस की, टाइम कम लगेगा. यहां कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए. Express train's speed is 11 km more than that of passenger train. Then you know time taking by passenger train. Obviously जो स्लो ट्रेन है, कटनी से जबलपुर आपको जाना है, जो स्लो ट्रेन है इट टेक्स मोर टाइम देन दी एक्सप्रेस ट्रेन. सुपर फास्ट कम टाइम लेगी. आप बोर हो जाते हैं ना, कहां से पैसेंजर में बैठ गया ना, बहुत टाइम लग रहा है. फास्ट ट्रेन, सो टाइम टेकिंग बाई द पैसेंजर ट्रेन माइनस टाइम टेकिंग बाई द एक्सप्रेस ट्रेन, दिस डिफरेंस इज 1 hour. क्वेश्चन की लैंग्वेज में शुरू में देखिए, द एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस. लिखा है क्या? Yes, the express train takes 1 hour less than the passenger train. That is time taking by the passenger train, TP for time taking by passenger train, time taking by express train equal to 1 hour. Then you know speed equal to distance upon time. This is very useful formula. So distance equal to time equal to distance upon speed. Time taking by the passenger train. The passenger train moves with x kilometer per hour. Distance is 132. So 132 upon x minus 132 upon x plus 11 equal to 1 hour. पैसेंजर ट्रेन का जो टाइम था उससे टाइम टेकिंग बाय द एक्सप्रेस ट्रेन, दोनों का डिफरेंस 1 hour है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन. टेक एलसीएम ऑफ दिस एंड देन यू फॉर्म द इक्वेशन. प्लीज ट्राई टू फॉर्म द इक्वेशन. जल्दी करें, इक्वेशन फॉर्मेशन करें. साथ साथ करिएगा प्लीज, क्वेश्चन साथ में करें और सेम डे एक्सरसाइज कर लें. जैसे आज मैंने इवनिंग में आपसे क्वेश्चन पूछ लिए, प्लीज पोस्ट दी डाउट. रात में 9:30 तक आपको डाउट पोस्ट करने ही हैं, क्योंकि मुझे प्रिपरेशन करनी होती है, वीडियो प्रिपेयर करना है, फिर उसको प्रोसेस करना है.
आप तक पहुंचाने के लिए, सो इट टेक्स टाइम. नाउ टेक LCM. x into x plus 11. So it is 132 into x plus 11 minus 132 into x equal to 1 upon 1. Either take 132 common or split this bracket. 132x plus 132 into 11 minus 132x upon x square plus 11x, it will be 1 upon 1. 132x cancel. Using cross product, x square plus 11x equal to 11 2 ja 22, 2, 11 3 ja 33 plus 2, 35, 11 1 ja 11 plus 3, 1452. X square plus 11x minus 1452 equal to 0. Once again I am requesting you, not necessary you have always use the formula method or factorization method. You may use any one method which is convenient for you. आप जिसमें easy feel करते हैं वो मेथड लगाएं. इक्वेशन फॉर्मेशन हो गई. अब आप इसको सॉल्व कर दें. इसमें मैं फैक्टराइजेशन मेथड लगा के बताता हूं. फॉर्मूला आप लगा लेना. व्हाट इज द मिडिल टर्म? प्लस 11x. व्हाट इज द प्रोडक्ट? माइनस 1452x स्क्वायर. Tell me two numbers, their product is negative, so splitting part having opposite sign. Tell me two numbers, their product is 152 and the difference is 11. 1452 को फैक्टराइज कर लीजिए. 1452 को फैक्टराइज करिए. 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 2 1, 11 11. ये फैक्टर्स हो गए सर. अब आपको ऐसे पेयर जनरेट करने हैं जिनका डिफरेंस 11. मुझे तो सर अभी दिख गया सर. आपको दिख रहा है? आप देखें सर, 1452 को मैं क्या लिख सकता हूं? ये ध्यान देना बेटे, इससे मेथड आपको समझ आ जाएगी. 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11, दैट इज 2 इंटू 2 लिख सकते हैं. यदि मैं 11 इंटू 3 को ले लूं पहले 33 और 4 इंटू 11 को ले लूं तो 44. क्लियर जी? मैं इसको 12 इंटू 121 भी लिख सकता हूं. क्लियर जी? अब आप देखें, इन दोनों का डिफरेंस तो 11 नहीं है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस तो 11 है. सो व्हाट आर द फैक्टर्स? 33 एंड 44. अब इनमें लार्जर कौन है? 44. तो 44 का साइन मिडिल टर्म का आएगा. मींस इट इज रिटन एज प्लस 44x माइनस 33x. प्रोडक्ट करके देखोगे तो यही आना है, प्लस 44x माइनस 33x. आप इसमें फॉर्मूला मेथड लगा लेना. आई वॉन्ट टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम विथ द मेथड कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड. सो x प्लस 44x minus 33x minus 1452 equal to 0. Now taking x common, so it is x plus 44 minus 33 common, x plus 44, x plus 44 is whole common, x minus 33, then x equal to minus 44 or x equal to 33. Speed is never negative, so you neglect this first one. ये first part आप neglect कर दोगे. क्यों? क्योंकि negative नहीं हो सकता. So it is not possible, that is neglected.
then what is the accepted? 33. Therefore, speed of passenger train will be 33 kilometer per hour. Therefore, speed of express train will be, it will be x plus 11, that is 33 plus 11, that is 44 kilometer per hour. My dear children, this is the way by which you solve the question number 10 of the exercise. It is most important question of the exercise. Speed, distance and time. Similarly, you have to solve the remaining problem. Aditi has asked the problem, I think example 17. This is the problem based on the nature of the root also. So first I want to discuss the nature of the roots, their property. So the quadratic equation will be over. Then we will discuss the question number 17, Aditi. First we discuss the nature of the roots. So it may be the last concept of the quadratic equation, then we will start arithmetic progression. Nature of roots of a quadratic equation. If you have a quadratic equation, ax square plus bx plus c equal to 0 is the given equation. Then you want to solve it, then you remember first we calculate its discriminant. What was discriminant, you remember? It is capital D. कैपिटल डी से हम डिनोट करते हैं, इट्स वैल्यू इज वी स्क्वायर माइनस, मैं ऑलवेज आपसे बोलता हूं कि फर्स्ट यू कैलकुलेट द डिस्क्रिमिनेंट. इफ फर्स्ट डी इक्वल टू डी इज पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव नंबर आया, अब इसको सिंबॉलिक मीनिंग में हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज positive means greater than 0. Then roots are real and distinct. यदि D पॉजिटिव है तो दोनों रूट रियल आएंगे एंड डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग आएंगे. सेकेंड, if D is 0, that is D equal to 0, then roots are real and equal. Third, if D is negative, that is D is less than 0, then roots are not real, that is imaginary, वो आपको सिलेबस में नहीं है. So these are the conditions for 3 conditions for the
roots of the quadratic equations. Clear ji? After this formation of D, you have to apply the formula. पहले आप इनको लिखें, ये तीनों कंडीशन अपनी कॉपी पर नोट करें. The nature of the roots depends on the discriminant. We calculate the discriminant. If discriminant is positive, that is more than 0, then roots are real and distinct. If discriminant is 0, then the roots of the quadratic equations are real and equal. If discriminant is negative, then the roots of the given quadratic equation are not real. You remember these conditions. So whenever they ask check the nature of the roots, you have to calculate discriminant. Discriminant calculate करने के बाद क्या क्या चेक करना है? यदि discriminant पॉजिटिव आ गया तो रूट रियल होंगे, अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे. 0 आ गया रियल रूट्स होंगे बट इक्वल होंगे, और नेगेटिव आ गया तो नॉन रियल रूट्स होंगे, मतलब इमेजिनरी होंगे. जब इतना कर लेते हैं फिर हम फॉर्मूला लगाते हैं. क्या होता है फॉर्मूला जी? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी. यदि फर्स्ट और सेकंड केस है तो फॉर्मूला लगाएंगे, थर्ड है तो वहीं छोड़ देंगे. प्लस साइन लेने पर जो रूट आता है उसको अल्फा बोलते हैं, एंड जो माइनस साइन लेने पर आता है उसको बीटा बोलते हैं. मिडिल टर्म का जो साइन है डी के पहले वाला, रूट डी के पहले वाला, व्हेन यू टेक प्लस से इट इज अल्फा, एक कोई वैल्यू आएगी उसको अल्फा बोलते हैं. दिस कॉल्ड फर्स्ट रूट एंड सेकंड इज कॉल्ड बीटा. अब यदि मैं दोनों को ऐड कर दूं, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करूं, देन व्हाट हैपन? आप ऐड करके देखो, एलसीएम लेके रूट डी से रूट डी कैंसिल हो जाएगा. -2b अपॉन ए, दैट इज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a. एंड व्हाट इज द अल्फा इनटू बीटा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट c अपॉन ए, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के. These are the basic concept used to solve the next exercise. So next exercise is based on the discriminant only. इसका कोई ना कोई क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट्स का एग्जाम में जरूर पूछा जाता है. हो गया? जल्दी लिखें. Aditi, question number, example number 17 is based on the Pythagoras theorem. You read the language of the question. It is nothing. It is the question based on Pythagoras theorem. किसी भी राइट ट्रायंगल में 17th क्वेश्चन में, क्वेश्चन रीड करो अंजलि. एग्जाम्पल. A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular path of diameter 13 meters. डायमीटर 13 मीटर, मतलब ये पोल है सर. यस, हाँ. In such a way that the difference of its distances from the two diagrammatically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. ये ए बी डायमीटर पे होंगे. ये एंगल इन दी सेमी सर्कल होता है. एंगल इन दी सेमी सर्कल, ये एंगल 180 होगा तो उसका हाफ होगा, ये मतलब 90 होगा. एंगल इन दी सेमी सर्कल, सो ट्रायंगल एडीबी बिकम्स अ राइट एंगल ट्रायंगल. एडीबी क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा. अब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें. आगे कुछ लिखा होगा. Is it possible to do so? If yes, at what distance from the two gates should the poles be erected? हाँ. Now it is asked that is it possible? If yes, so opposite fixed gate their distance is 7. My dear friend, AD और BD का डिफरेंस है 7. मतलब यदि मैं
बी डी, लेट बी डी इक्वल टू एक्स लूं तो ए डी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 7। ए डी और बी डी का डिफरेंस 7 दिया हुआ है और ए बी कितना है जी, 13। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम 90 का अपोजिट ए बी होगा, मीन्स ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस वी डी स्क्वायर। व्हाट इज ए बी, 13, ए डी एक्स प्लस 7 स्क्वायर प्लस बी डी एक्स स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम 169 एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर। यूजिंग addition apply quantity, so you say 2x square plus 14x plus 49 minus 169 equal to 0. 2x square plus 14x minus 120, so x square plus 7x minus 60. अदिति ये समझ आया, इक्वेशन फॉर्मेशन समझ आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस। अब आप इसमें चाहें तो मेथड अप्लाई कर दें, फॉर्मूला मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड, और सॉल्व कर लें, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट। अब इसको फैक्टराइज करिए, 12 5 जा होता है क्या, 60। सो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60, x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 5, एक्स इक्वल टू माइनस 12, नॉट पॉसिबल, इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। देन एक्स इक्वल टू 5, 5 इज द आंसर। एक्स का वैल्यू 5 होगा, मीन्स ए को एक्स यदि 5 है, मीन्स बी डी यदि 5 है तो ए डी क्या होगा, 12 और ये 30। सो यस, इट इज पॉसिबल। Now you have the exercise 4 point. Aditi, you got it? Solution आपको समझ आया? Yes or no? Tell me. Write in comment box. Now I would like to discuss the exercise 4.4. Yes. Find the nature of the roots of the following quadratic equations. If the real roots exist, find them. Yes. First, 2x square minus 3x plus 5 equal to 0. स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करो, पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर एक्स का, फिर कांस्टेंट टर्म। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, -3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, 5। देन D इक्वल टू नेचर चेक करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। बी एस -3 स्क्वायर 4a टू c5, that is 9 minus 16 into 5, that is 8 into 5, 40, minus 31, it is negative, that is less than 0, so roots are not real. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को रूट्स बोलते हैं, पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन को जीरोस बोलते थे। क्यों? टेल मी। The solution of a polynomial, that is, you substitute these values in the polynomial, then the polynomial becomes 0. That's why they are called zeros of that polynomial. In quadratic equations, there are two sides, so it is called roots of the equation. Clear? अब यदि रियल आएंगे तो आपको फॉर्मूला लगा के फाइंड करना होगा, फिर ऐसे ही आपको फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के क्वेश्चंस करने हैं, के की किस वैल्यू के लिए रियल रूट्स हैं वो आपको फाउंड करना है और इस एक्सरसाइज को ट्राई करना है। सो दिस इज द वे बाय विच यू फिनिश द एक्सरसाइज 4.4। 4.4 आपको कंप्लीट करना है। कोई डाउट होगा तो बताना है,
हम लोग वो डाउट इवनिंग में मैं आपको मीटिंग दूंगा, फ्राइडे और सैटरडे को मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा, ग्रुप पर मैसेज डालूंगा, तब तक आप कर लेना। मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे इवनिंग आपकी मीटिंग होगी गूगल मीट पर, उसमें मैं कुछ डाउट डिस्कस करूँगा और फिर जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ रिपीट दी प्रॉब्लम्स, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स। आई विल टेक दी टेस्ट ऑन दी गूगल फॉर्म, तुरंत मैं टेस्ट लेने वाला हूं। नेक्स्ट वीक में किसी भी टाइम आपको टेस्ट मिल जाएगा, सरप्राइजिंग टेस्ट होगा, उसके मार्क्स मैं रिकॉर्ड करूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।